All are first year? Second year also? Second year वाले कौन कौन से? Third year also? Third year also. Okay. Mix है, but maximum are first year. Okay. Very nice. But very, very happy to see so many people in uniform, which is very good. आज के ज़माने में यूनिफॉर्म लोगों को ऐसा लगता है कि ओहो हमारे को यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, राइट? कितने कितने लोगों को यूनिफॉर्म से प्यार है और कितने लोगों को होता है कि क्यों यूनिफॉर्म पहननी पड़ रही है. You love uniform. Let's see how many people love uniform. Okay. ये कह रही है सुबह अच्छा लगता है, दोपहर तक खराब हो जाता है, राइट? है ना? ऐसा लग रहा है थोड़ा सा. So is it important कि यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं हम लोग? Why do we? मतलब स्कूल में पहनी, अब कॉलेज में पहन रहे हैं, ये ऐसे what is there a need? Is there a need? What does it do? What does uniform do? Okay, so it brings equality. Okay, what else? Yes, Sitesh. Everyone in single format. What else? Any other view of? Well, let's see whether it's important or not. Or yes. Respect to your profession. Very good. What else does uniform does? Yes. Gives us our own identity. Gives us our own identity. The biggest thing uniform does is it brings everyone together. It makes you one family. While you are individuals at home, institutions bring people together. Power of togetherness is much bigger than, that's why uniformed services, military services, they are uniformed because unity is important. So it is not one, it is oneness. There's a difference between being one and being, so while you are individual, that identity will always be there. What uniform does is it tries to create a collective strength. So in an institute or wherever you are, whether you are in uniform or not, if you have to become bigger force, much bigger than what you can achieve, you can only achieve limited things when you try to do that yourself. But if you want to do more, you want to create higher impact, then the only way to do that is through collective effort. Okay? Team effort कैसे बोलते हैं? So these are the basic foundations of team. इंडिविजुअल भी काम करेंगे, लेकिन हो सकता है आप अपने लिए काम कर सकते हो, दूसरे के लिए काम करते हो. There also there would be teams. So while you will compete for individual excellence, always try and see how can you create collective excellence. Okay? Individual excellence is important, collective excellence is even more important. So there are countries where they have perfected this art. They are so good at many things as compared to many other countries. As individuals, they are very good, but when they come together, they are brilliant. Okay? अभी फुटबॉल के मैच में फाइनल में देखा हमने,
स्पेन, व्हाई डिड दे विन? 3 प्लेयर्स के स्पेन के नाम बताओ. एक का भी याद नहीं आ रहा है ना? आ जाएगा, एक का आ जाएगा ना, 3 मुश्किल हो जाएंगे. ठीक है. अर्जेंटीना के तो आ जाएंगे, जबकि स्पेन का भी ऐसा नहीं कि जमाल के सब न्यूज में उतना ही था, बट फिर भी मेसी विल ऑलवेज बी वन. पॉइंट इज दैट टीम जो है इकट्ठे होना, दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ. कंट्रीज में जापान एज अ कंट्री, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर. They work together. In a way, they are always helping each other. It's not that they don't excel in individual things, but they are always helping. As a tourist also, आप कहीं खड़े हुए, रास्ते में खड़े हुए, आपको रास्ता पूछना है, हमारे यहाँ होगा, बोलेगा अच्छा वहां से चले जाओ. ठीक है. जापानीज होगा तो आपने उससे रास्ता पूछा तो वो आपको सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, आपको वहां तक छोड़ के आएंगे, चल के I'll take you there, come, I'll show you where it is, right? Because that is been part of their culture. Okay, so this is important. And अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, was यही था, पूना से ही NDA के स्टूडेंट को I was addressing. पूरा आई थिंक देवर 2500 पूरा बैच उनके सारे, और एकदम यूनिफॉर्म में सारे ऐसे बैठे हुए, टेंशन न होता. जाके मुझे पहले बोलना पड़ा एट ईज, राइट. वो मतलब मुझे वहाँ पे मौका मिला टू एड्रेस देम, बिकॉज उस समय द कमांडेंट ऑफ एनसीसी नहीं, NDA जो थे, वो उनका नाम भी संजीव कपूर था, एयर मार्शल संजीव कपूर. ही वॉज मैनेजिंग. तो उनको बड़ा चले कोई संजीव कपूर, चलो. तो स्टेज पे 2 संजीव कपूर थे, और सो फेल्ट वेरी गुड टू सी दैट. सो ये क्वेश्चन हमेशा काम में आएगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूनिफॉर्म, बट हाउ डू वी क्रिएट कलेक्टिव इम्पैक्ट. ओके. और ये जब सिम्बाइसिस में हम लोग बोलते हैं ना, वर्ल्ड इज वन फैमिली, सो इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बोलने के लिए नहीं होता है, आपके सबके वो उस पर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, राइट. वसुदेव कुटुंबकम. तो देयर इज अ, इट्स नॉट जस्ट कि एम्बलम है, वो नहीं है. दिस हैज टू बिकम लाइफ्स मीनिंग. इट हैज टू बिकम इम्पॉर्टेंट टू यू. एनीवे, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे कर सकता हूँ, बट आई जस्ट आई थॉट कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट आई सॉ यू, तो मैंने बोल दिया. मे बी वॉट विल डू इज़ विल टेक 5 क्वेश्चंस. ओके. तो किसी को कुछ भी पूछना हो आप पूछ लो. रेज योर हैंड. मुझे आपसे ये पूछना था कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प किया? ओके. ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो मुझे लाइफ में इतना सक्सेस? द डे आई वाज बोर्न. उस दिन से शुरू हो गया था वो. तो दैट्स द मोस्ट वैल्यूबल थिंग, टू बी बोर्न इन दिस वर्ल्ड. वी आर सो लकी. सो डोंट वेट कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, कोई सितारा चमकेगा. आप यहां पे आ गए, वो दिन टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का. ओके. सो you, all of you have that opportunity. So don't think that there are special opportunities that come in. You have to create opportunity. All of us have equal opportunities. You have same uniform. Okay. Yes. Good afternoon, Chef. I would like to ask that you are such an established chef, and we all have heard from all of our chefs that being a chef is really hard. It's very hard work. So what keeps you motivated to always cook and keep going as a chef? जब भी कोई चीज, कोई ऐसा सुनते हैं, it is hard work, hard this thing. So why do we assume that if you do anything that is difficult, it is not good?
right? It's so something, life itself is very hard. Should we stop living it? No, we should not. Okay, so don't mistake कि कोई चीज मुश्किल होती है तो वो शायद नहीं करनी चाहिए, आसान चीजें करनी चाहिए. नो, मुश्किल चीजें करने में ज्यादा मजा आता है, right? So motivation is, harder it is, better it is. So it's a state of mind. आप किस तरह से लाइफ को किस तरह से सोचते हो. आप ऐसा देख सकते हो कि ओहो ये तो बहुत खराब है, बहुत मुश्किल है, और आप कह सकते हो कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा, मजे आएंगे. सो चैलेंज जो है, दैट इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन, राइट? सो एम्ब्रेस चैलेंज. Hi Chef, good afternoon. Yes, good afternoon. Just had a question for you. It's more of a personal question. हाँ जी. सर शेफ, आप जब कॉलेज टाइम में थे शेफ, हाँ, आप कैसे थे? लाइक थोड़ा मस्ती वाले थे या मतलब हम मैं तो अब भी मस्ती वाला हूँ. वही, क्योंकि आपको देख के लगता है कि मतलब हम कॉलेज के दिन आ जाते ऐसा, लाइक हाँ. यू नो, वी जस्ट थिंकिंग हाउ यू वुड बी एज अ स्टूडेंट. दैट वाज द क्वेश्चन. So how so I was brilliant as a student. तो मस्ती वाला भी था. ओके, मैं कॉलेज में टॉप में था, स्कूल में, कॉलेज में टॉप पे था. कॉलेज में हिंदी अंग्रेजी दोनों में बेस्ट स्पीकर था, दोनों लैंग्वेजेस में. मैं बैंड लोकल वहाँ पे बैंड में प्ले करता था मैं. ओके, बैडमिंटन खेलता था. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई करता था, सब कुछ करते थे हम. हाँ, बस मैंने अटेंडेंस मेरी 100% थी. तो उसके लिए मतलब मैं कभी ऐसे भाग के मूवी देखने नहीं गया, बट इसका मतलब है कि मस्ती नहीं करता था. सो देयर इज मिसकंसेप्शन कि अगर मतलब आप जैसे स्कूल के मेरे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं ना, सोशल मीडिया पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि क्या डालें, क्या कैसे मिल गए. माई डॉटर रचिता इज सिटिंग देयर, तो देख के कुछ साल पहले था, व्हाट अ नर्ड यू आर, 100% अटेंडेंस, हाउ बैड, राइट? बट आई वाज प्राउड ऑफ इट. मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई. मैं तो अभी भी उस चीज़ से एक्साइटेड होता हूँ. मैं तो आज भी काम कर रहा हूँ, मैं कल भी काम कर रहा हूँ. आज सैटरडे है, कल संडे, मैं तो कल भी काम कर रहा हूँ. ओके, मंडे को भी काम करूँगा. सो आई गेट एक्साइटेड विद इट. सो आई वाज, मस्ती तब भी थी बट मस्ती के साथ साथ बहुत और चीज़ें भी करते थे हम. पढ़ाई भी अच्छी करते थे, सारी चीज़ें करते थे. हमारे बैच की जब रैगिंग हो रही थी, तो मैं फर्स्ट ईयर में था जब रैगिंग हुआ करती थी. ओके, जब रैगिंग हो रही थी, बिकॉज जो हमारा कॉलेज का बैंड था उसमें कोई ड्रमर नहीं था. आई कुड प्ले ड्रम्स. तो हमारे बैच ही रैगिंग हो रही है, परेड पूरे फाइनल उसमें हो रही है, और मैं स्टेज पे बैठ के ड्रम बजा रहा हूँ और सबकी रैगिंग चल रही है. बाद में कहते क्या तुम्हारी ऐश थी, तुम्हें तो सीनियर्स ने ऐसे बिठा रखा था. मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? सो आई हैड दैट डिस्टिंक्ट एडवांटेज. तो यस, हाँ जी. Good afternoon, Chef. गुड आफ्टरनून. What made you go into the culinary profession and not other professions? Culinary क्यों choose किया ऐसा? culinary क्यों चूज किया? So when I was in 12th standard, तभी होता है कि आप क्या करोगे. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट मैं स्टडीज़ में अच्छा था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट में आके, तब तो culinary ऐसे नहीं होता था, तब होटल मैनेजमेंट होता था. तो ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले पढ़ाई में ठीक नहीं हो, तो तब भी अच्छा ही था. तो लोगों ने तभी होता है कि अच्छा अब क्या करना है, इसके बाद में क्या करेंगे, होता है ना, सिट डाउन, क्या करना है. तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, क्या करना है. तो आई वाज इंजीनियरिंग. तब 2 स्ट्रीम्स होती थी, एक मेडिकल, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर इंजीनियरिंग वाली साइड में. तो आई वाज इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट. तो इंजीनियरिंग करनी है, बट इंजीनियरिंग कहाँ करेंगे. तो मेरे केस में था, तुम्हें क्या है, तुम तो IIT कर लोगे, IIT में चले जाओगे. अच्छा, कोई ऐसे डिस्कशन हो, सारे मतलब मेरे था, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू IIT कर लेगा, तेरे को क्या है, तो IIT. मैंने कहा मैं IIT नहीं करूँगा, मैं तो बस ये नहीं करूँगा. मैं
ये खाना बनाने का प्रोफेशन होता है वो भी नहीं पता था, शेफ होता है वो भी नहीं पता था, शेफ वर्ड ही नहीं पता था। कभी ऐसी जगह गए नहीं, किसी होटल गए नहीं कभी कि जहां पर शेफ से कभी मिले हों, कभी ऐसा पता ही नहीं था। सो आई हैड नो क्लू, नो नॉलेज कि ऐसा भी कुछ होता है। सो नाउ इफ आई वाज नॉट टू डू IIT तो क्या करूँगा? फिर मैंने कहा कि अच्छा आर्किटेक्चर करता हूँ। तो आर्किटेक्चर में एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। वहाँ पे साल में कुछ 18-20 लोग लेते थे। तब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, तो मैं कहा 18-20 बड़ा अच्छा है, ऑल ओवर 18-20 ऑल ओवर इंडिया लेते हैं, 18-20 में तो नंबर आ ही जाएगा अपना इंडिया में, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे मैं वेट लिस्ट हो गया। तो मेरे पास तो प्लान भी था नहीं। उस समय हमारे टाइम पे दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, अभी भी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तब वो मेरिट पे हुआ करता था, मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं, PCM अच्छा है, तो यू कुड गेट एडमिशन। मैंने कहा अगर मैं IIT नहीं मैंने की है, कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं ज्वाइन करूँगा, राइट। तो अब मैं आर्किटेक्चर में वेट लिस्टेड, इंजीनियरिंग मैंने कहीं दूसरे कॉलेज से करनी नहीं, फिर क्या करूँगा? तो ऐसे करके मैं होटल मैनेजमेंट में आ गया कि कुछ अलग करते हैं, चलो देखी जाएगी। कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे है। एंड आई जॉइंड दैट। होटल मैनेजमेंट कर लिया 3 साल, तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि शेफ बनना है। सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा था, फूड प्रोडक्शन में भी अच्छा था, बेकरी में भी अच्छा था, सर्विस में भी अच्छा था, फ्रंट ऑफिस में भी अच्छा। सो व्हाट? तो तब मुझे लगा कि ये होटल मैनेजमेंट जब मैंने की, तो ये तो एकदम अलग रास्ता है, ये तो मेरे जैसे कोई कर ही नहीं रहे थे, हमारे जैसे जितने दोस्त हैं मेरे, या वो, मैं ये तो मजा आ गया। मैं कहा ये शेफ वाला कैसे होता है, वो भी एकदम अलग है। उस वक्त शेफ भी कोई ज्यादा नहीं बनते थे। तो दैट वाज द मोटिवेशन कि चलो ये भी करके देखते हैं। अभी तक सब ठीक ही हुआ है, ये भी ठीक हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई डिड दैट। लोग ऐसा लगता है कि कुछ ना अचीव जो करते हैं, जो बहुत फेमस हो जाते हैं, उनको बचपन से पता होता है कि सब क्या करना है, ये करना है। एक्चुअली लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ बड़ी कंफ्यूज्ड वे में चलती है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। डोंट थिंक कि पहले अब तो नहीं किया, अगर हमने कुछ करना होता तो हम बचपन से ही हमें पता होना चाहिए था, अब तो हमारा कुछ नहीं होता। You can, every day will give you an opportunity. What you do with it, but you have to be sincere with it. You can't do it lightly. You can't think कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप जितना होगा वो सबके साथ भी हो जाएगा, ये भी याद रखना। अगर आपको, आपकी इच्छा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मजा आता है टू स्टैंड आउट, आई लव टू स्टैंड आउट। एक होता है भीड़ में खुश हैं, राइट। कुछ होते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वी लव टू स्टैंड आउट। वो जो स्टैंड आउट के लिए फिर वैसा ही एफर्ट करना पड़ता है, एंड देन चांसेस ऑफ बिकमिंग आउटस्टैंडिंग इंक्रीज। सो एफर्ट भी वैसा करो, अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होंगी। बट डोंट, एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर जो सब लोग कर रहे हैं, जब सारे जैसे कर रहे हैं, तो आप एक तरह से सब जैसे बनोगे, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, तो फॉलोअर ही बनोगे। लीडर बनना है तो लीडरशिप वाले काम करो। लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स डरते नहीं है, दे डोंट गेट स्कैर्ड, दे डू थिंग्स दैट have probably not been done before. वो कोई बना हुआ रास्ता है उस पे नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि चल देखते हैं यहां पे क्या होता है, और शायद रास्ता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चल के देखते हैं। और फिर वो पहुंच जाते हैं कहीं, धंसता तो था नहीं, लेकिन कहीं पहुंच गए तो पता चला कि अपने साथ साथ रास्ता भी बन गया।
राइट? एंड सडनली यू सी कि आपने क्योंकि जब रास्ता बना दिया है तो लोगों ने आपको लीडर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उस रास्ते पे भी और लोग आने लग गए, राइट? सो ट्राई एंड सब लोग, आई एम नॉट सेइंग इट्स दैट इजी, बट दैट अपॉर्चुनिटी इज एवरीवन. कुछ लोग चॉइस लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे. सो जो लोग चॉइस नहीं लेंगे, बी हैप्पी विद बीइंग ए फॉलोअर. डोंट बी, और ऐसा नहीं कि बीइंग ए फॉलोअर इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, इट्स अ चॉइस वी मेक. हां, एफर्ट आपने फॉलोअर वाला करना है, लेकिन लड्डू लीडर वाले खाने हैं, वो गलत है. नहीं. सो डिसाइड what path you want to take. It's a choice that you will make. Nothing is wrong. कुछ गलत नहीं है. जब एक खेत में गाजर उगाता है ना फार्मर, तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी उगती हैं, कुछ सीधी वाली भी. सीधी वाली आप लोग मार्केट में खरीदते हो, वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो कौन खरीदता है? फार्मर की. तो बेचारे ने, गाजर की थोड़ी कोई गलती थी, उनकी भी वही लाइफ थी, राइट? सो नॉट एवरीवन इज हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. सब इकट्ठा ही हुआ था, वही बारिश का पानी गिरा, वही सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ वैसे हो गया. बट वो भी कहीं यूज हो जाता है, डोंट वरी. उसका भी हम लोग अपना अक्षय पात्रा, आई सपोर्ट अक्षय पात्रा, वहाँ पे किचन में हर रोज 26 लाख बच्चों को खाना खिलाया जाता है, हम यूज करते हैं वो वाली. एज आई से, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड और कैरेट्स ऑफ लेसर गॉड. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अब देखा 3 हाथ खड़े हो गए ना, लॉटरी डालो इनकी. ओके, देखो लड़कियों ने ज्यादा पूछ लिया, लड़कों ने नहीं पूछे हैं. तो लड़कियों ने शुरुआत की थी, लड़कियों को ही मौका देंगे अब. चलो. Good afternoon, Chef. My name is Tanirika. I'm an MBA student. Chef, over all of these years, your name itself has become a trusted brand. So I just want to ask, what are the most important factors which are needed to build a brand that consumers would trust all over the decades as well? Authenticity. Authenticity does not mean कि जो सालों साल होता है that is authentic. Authenticity is जो आप बोलें हर कंडीशन में, हर मौसम में, हर उसमें आप, you are true to yourself. No matter what the circumstances are. You don't give in because of the circumstance. Your ability. अगर आपने कुछ बोला है कि ये खराब है, तो लोगों को हाँ हाँ ये तो खराब ही है, नॉट बिकॉज आपने बोला, बिकॉज पता है ये खराब है इसलिए, और हमने भी बोला है. हम ऐसे किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग. बाकी जितनी भी बचपन से अब तक बोरिंग चीज़ें जितनी सुनी है ना, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, स्कूल में जितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, वो सबसे ज़रूरी होती है. जब जिसको पढ़ाया नहीं जाता है, राइट? अब बट वो सुनते हम हमेशा हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, बहुत लॉन्ग लिस्ट, एंड वी ऑल नो इट. कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर वो हमेशा ऐसा लगता है कि ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे सब कर रहे हैं, तो शायद ये ठीक ही होगा, राइट? डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, रिस्पेक्ट है, कंपैशन है. ऑल दिस हैज, यू हैव टू डू इट एवरी डे, एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू. एंड वंस यू डू इट, देन हाँ ये तो बदलते नहीं है, मौसम बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेंगे, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, और कुछ नहीं. Okay, last question. Good afternoon, Chef. Good afternoon. My name is Varun Deshmukh, and I wanted to ask you something. If you had to start completely over, 18 years old, no name, no network, what's the one thing you do differently to get where you are now faster? I'll not become a chef. Why? Authenticity बोला ना अभी. Yes. There are many smarter things I can do. Okay. Thank you. Not to say that you have made a wrong choice. This is me. Right? So I will do something which probably would be that most people have not thought of. That's me.
I can do that. तो मैं मेरे में वो पागलपन बचपन से था. सब लोग और स्कूल में भी था, सब लोग इधर जाते हैं, मैं इधर जाता हूँ, राइट. तो मुझे मज़ा आता था, राइट. तो क्लास में, स्कूल में, बचपन में भी जैसे अब मुझे पता है कि कल फिजिक्स की क्लास में क्या टीचर पढ़ाएगा, तो मैं तो एक दिन पहले पढ़ के जाता था. तो टीचर पूछेंगे कि ओके टुडे सब्जेक्ट यू नो, यस आई नो. मुझे मजा आता था. तो पहले पूछे नहीं एक्सेप्ट यू, ओके एनीवन नोस. मैं क्यों करता था, मुझे मजा आता था. नोबडी एल्स वुड डू दैट, राइट. वुड इट टेक extra effort? Yes, it would take extra effort. Okay, but then that is the thing that I started to enjoy. तो इसलिए मुश्किल भी नहीं लगता था. So Atul was we worked together in one company. This was at Ashok Hotel. Sit down. एक हमारे now I'll tell you something which there was no internet. एक ऐसा भी ज़माना था, इंटरनेट नहीं था. ओके, देयर वाज नो इंटरनेट. तो गूगल नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, था ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं था. तो हमारा आई वाज स्टिल शेफ ट्रेनिंग एंड आई वाज एट अशोक होटल. हमारे जो शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ, तो एक बड़े घर से किसी के भरत राम फैमिली, उनके घर से कुछ ऑर्डर आया और उसमें वन थिंग दैट वाज देयर वाज दे वांटेड समथिंग इन ताहिना सॉस. ओके, अभी वो वहाँ तो परेशानी होगी कि ये ताहिना सॉस, ताहिना किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं. अब लेकिन वहाँ से उनको पूछ भी नहीं सकते हैं, वो इतना बिजनेस जैसे लाइक देवर टाटा बिरला जैसे वाले टाइप में. उसमें जैसे अभी सोचो कि नीता अंबानी जी का फ़ोन आ गया कि मुझे ये चाहिए, और होटल वाले होंगे तो गूगल भी कर लेंगे, देखें अच्छा बनाते हैं, देख करेंगे, राइट. अभी वो पूछें कि कहाँ ये क्या बना के दें, हम कैसे करें. तो आई हैड एंटर्ड द शेफ्स ऑफिस और 5-6 शेफ्स खड़े, और मैं तो ट्रेनिंग यस सर करके ऐसे खड़ा हुआ हूँ. तो ये डिस्कशन चल रही क्या है. तो मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है ये ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे होती है सर, सॉस ऐसे है, ऐसे. तो ये पक्का पता है? मैं कहा नहीं सर पक्का नहीं पता, मुझे लगता है कुछ ऐसे है, राइट. तो उन्होंने एक को लगाया कि इसको ले जा और इसके साथ में बना के दे दो. वो भी हमने जैसे वैसे बनू के दे दिया, ठीक है. वहाँ गया, वहाँ से बड़ी पसंद हो गई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, ये था, हो गया. अच्छा, अब उस दिन के बाद से वो होटल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता चल रही है, वो उसको बुलाओ, वो ट्रेनी है ना, उसको बुला लो. नाउ अब मेरे से तो एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई है, सो आई हैड टू बी ट्रू टू दैट एक्सपेक्टेशन. सो वो तो मेरा पहले से टैलेंट रहा है कि हाउ टू बी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स. तो मैं कैसे करूंगा? सो यू हैव टू लर्न मोर, और कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग टू इट. यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट देन व्हाट एनीवन एल्स इज डूइंग. और जब एक्सपेक्टेशन है तो आपको पता है, राइट. नाउ वन ऑफ द थिंग्स इज दैट हमारे फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी मैं जाता हूं तो एवरीवन सेज कि इनके जैसी मेमोरी नहीं है, मेरे जैसी मेमोरी नहीं है. हो सकता है मेरे को कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती होंगी, बट दैट इज द कॉमन ट्रस्ट पीपल हैव इन मी कि मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है. ओके, तो फिर देन आई हैव टू स्टार्ट वर्क ऑन इट. इनको नाम बड़े याद रहते हैं, सो इफ आई एम इंट्रोड्यूस टू एनीवन, कुछ नाम याद रखने पड़ते हैं. फिर मैं बोलता हूँ अच्छा, फिर मैं थोड़ा प्रेशर अपने आप खुद और डाल लेता हूँ. कोई किसने कार्ड दिया, मैं कार्ड वापस कर देता हूँ. अच्छा ठीक, तो आप मैंने को देख लिया, नंबर हो गया, तो मतलब मेरे याद हो गया. ओके, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. ऐसे नहीं होता है कुछ, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट. सो आई कंटिन्यू टू बिल्ड सच थिंग्स
which then लेकिन ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए. And I just try and learn. So learning becomes it's part of me. I get a kick out of it. लोग ड्रग्स लेते हैं, मेरी ड्रग लर्निंग है. तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है. Okay? So I enjoy that. So enjoy learning. बड़ा बहुत फायदा है. बड़ा सिंपल है. आपकी एज में more learning, more earning. सुनते सब हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं मोर अर्निंग, मोर लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं होता है. ओके, सो मोर अर्निंग चाहिए तो मोर लर्निंग कर लो, फायदा होगा. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. मैं तो ऐसे चलता रहेगा. मुझे मुंबई भी पहुंचना है. सुबह 4 बजे, 4:30 बजे होटल से निकल गया था मैं. कल जयपुर से यहाँ. Thank you very much. But we will have more sessions. Don't worry, we'll have more sessions. और जो 3rd year वाले हैं वो पास भी हो जाएंगे, तो जहाँ आप काम करोगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे. Don't worry. Okay. Wish you all the best and do well or learn more. Okay. Will you learn more? Yes, sir. Fantastic. May you earn more and more and more, much more than that you expect. And when you earn more, share more. Okay. Thank you.